అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు. Honorable Speaker, sir. Sir, I was just going through the note and as well listening to the briefing given by the Honorable Minister for Health and Family Welfare, Itala Rajendra Saab. Honorable Speaker, sir, the note says, short discussion on COVID-19, impact of coronavirus in the state and measures taken. So before going on the note or the discussion on the impact and the measures of corona, standing here, sir, when I rise to participate in this discussion, I feel it is my moral responsibility اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اخلاقی فریضہ اور میری ذمہ داری ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر وہ سارے ہیلتھ ورکرز جو 5 مہینے سے انسانوں کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اپنے بیوی بچوں کو بھلا کر، اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھلا کر ایک بیمار کی جان بچانے کی جو کوشش میں لگے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک سرحد پر ہمارا فوجی ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، تو ویسے ہی 5 مہینے سے یہ کورونا واریئرز میں کہوں گا کہ کھڑے رہ کر کورونا سے لڑتے ہوئے ہماری جانوں کو بچانے کی کوشش میں لگے ہیں. تو میں میری جانب سے اور میری پارٹی کی جانب سے ان سارے ڈاکٹرز کا، سارے نرسنگ سٹاف کا، سارے سینیٹیشن سٹاف کا، سارے ایمبولینس کے ڈرائیورز کا، سارے لیب ٹیکنیشینز کا، سارے جھاڑو دینے والے یا جو بھی ہیں، اور وہ جو بریل گراؤنڈز میں گریوز کھود رہے تھے ان کا، کریمیٹیریمز میں جو ڈیڈ باڈیز کو لے جا رہے تھے ان کا، مارچریز میں کورونا سے افیکٹڈ ڈیڈ باڈیز کو پکڑ کر ان کے گھر والوں کو دیے ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم سرحد کے فوجیوں کو سلوٹ کرتے ہیں، میں آج یہ ہیلتھ ورکرز اور یہ جتنے کووڈ واریئرز ہیں اس ایوان کے ذریعے ان کو سلوٹ کرتا ہوں. افسوس آئی ایم سوری ٹو سے not a single word of appreciation is there in this note, nor a single sentence could the health minister give for these warriors. Afsos. Khair, this is how the government functions, or this is how they think the matter is serious. I leave it for their wisdom, and it is for them to decide. Secondly, sir, I stand here and I remember all those people who have lost their life because of this corona. ایک ایک گھر میں 4 لوگوں کی موت ہوئی، کئی لوگ مرے، کئی لوگ متاثر ہوئے. میں آج یہاں کھڑے ہو کر اس ایوان کے ذریعے کورونا میں اپنے چاہنے والوں کو جنہوں نے بھی کھویا ہے، میں ان کے افراد خاندان کے ساتھ اپنی دل کی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور اپنی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں. اور وہ کورونا واریئرز کے لیے بھی جو اپنی جان کو کھوئے ہیں، ہمارے اسٹیٹ میں بھی ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف، اور میرے ہاسپٹل میں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز میں کی ایک نرسنگ سپرنٹینڈنٹ لاس ہر لائف
I remember all those warriors who have lost their life. और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको जो इस लड़ाई में आगे थे अपनी जान को खोए हैं, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके अफराद खानदान को सब्र दे। और मैं इस ऐवान की तरफ से भी उनके साथ हूं, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में उनके साथ हूं। और फिर उसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, वो मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, वो मेरा भी चीफ मिनिस्टर है। वो सारे लोग जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दिए या चीफ मिनिस्टर फंड में जो कोविड में लड़ाई लड़ रहे थे, जो पैसा दिए हैं, जो भी दिए हैं, हुकूमत ने उनका शुक्रिया नहीं अदा किया। इस नोट में अफसोस फिर। लेकिन मैं समझता हूं कि ये चीफ मिनिस्टर भी मेरा है, ये प्राइम मिनिस्टर भी मेरे मुल्क का है, तो मैं उन सारे लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। वो अलग बात है कि नहीं मालूम वो कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, ऑडिटिंग होगी नहीं होगी, क्या होगी, वो अलग बहस है। लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी व फर्ज समझता हूं, इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं हर उस फर्ज का। एट द सेम टाइम सर, आई वुड लाइक टू थैंक all the organizations, all the NGOs, and all the individuals who came forward in the lockdown period and who were helping the needy and the ones who were hungry, जो दाने दाने को तड़प रहे थे, उनकी जिन्होंने भी मदद की है। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ ने या किसी फर्द ने अपने जेब से एक भूखे के पेट में एक दाना भी डाला है, तो मैं समझता हूं कि यहां खड़े रहकर मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अफसोस इस नोट में उनको भी जगह नहीं मिली, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और यह बात जरूर कहूंगा कि मैं मेरी एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से 5.5 करोड़ रुपये का राशन मैंने तकसीम किया। 1 लाख फूड पैकेट्स दिया, 1 लाख राशन के किट्स दिए हमने। मैं सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से, मेरे पार्टी के एमएलए कोरोना शुरू हुए से लेकर आज तक फील्ड में थे, और मेरा एक पार्टी का एमएलए को हार्ट अटैक हुआ, मौजम खान को स्टंट डालना पड़ा, लेकिन अवाम के दरमियान थे, अवाम के बीच में थे, उनकी दुख में थे, उनकी तकलीफ में थे, उनकी मुसीबत में थे, और हमने काम किया। मैं उन सब का करूंगा। एक एक मेरे पार्टी के एमएलए फील्ड पर थे। मौजम खान इन्फेक्टेड हुए, बलाला इन्फेक्टेड हुए, अहमद पाशा खादरी इन्फेक्टेड हुए, सब हुए, लेकिन फील्ड को नहीं छोड़े। और वैसे जितने लोग मेरे दूसरे कोलीग्स, टीआरएस के एमएलए हो, कांग्रेस के एमएलए हो, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के थे जो आगे बढ़कर फील्ड में काम किए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वी हैव बीन देयर फॉर द पीपल, विद द पीपल इन दिस सिचुएशन। और ऐसे हालात में यह काबिल मुबारकबाद है। और उसके साथ साथ सर, व्हेन आई कम डाउन टू दिस नोट, सर, द हेडलाइंस, शॉर्ट डिस्कशन, इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन द स्टेट एंड मेजर्स। सर, इसमें मेजर्स के बारे में है, एंड दिस सीम्स टू बी मोर लाइक अ हेल्थ बुलेटिन. Health bulletin has been issued. What impact this has left has not been mentioned. Has the corona not impacted the economy? Has the corona not impacted socially? Has the corona not impacted the businesses? Has the corona not impacted the administration? Has the corona not impacted the education? Has the corona not impacted the industries? Has the corona not impacted the agriculture? Has the corona not impacted on the state's finances? Has the corona not impacted on all sections of society? Has the corona not had an impact on all aspects of life? I am so sad to say, nothing of that has been mentioned in this. Nothing has been said. Why so much of unseriousness? Sir, when I go through this, when I see all relief measures,
have been, what are the relief measures? That also has not been mentioned. You have given ration. Why didn't you mention that? You have given relief to the migrant workers. Why didn't you mention that? You have organized trains for the migrant workers. Why didn't you mention in this? You have given money. Why didn't you mention in this? I am so sad and sorry to say. I don't know who's looking after the affairs. We have to look upon this. Through you, sir, I appeal to the member, the health minister thought that the information is enough for the house. ये सारे महाभारत जो पूछ रहे, अगर उनको चाहिए तो भिजा देते हैं. ये तो रोज अखबारों में आता है, रोज चलता है. सुनिए प्लीज. नहीं, आपको मैं नहीं बोल रहा ना. आई एम ओनली सी. अब जो इम्पैक्टेड बोले तो कौन नहीं करता जी? कोई कौन नहीं. ऐसा है इतना ऊंचा आवाज क्यों कर रहे हैं? नहीं, आवाज ऊंचे क्यों कर रहे हैं? अलग बात है. अलग बात है भाई, अलग बात है. नहीं स्पीकर सर जो पूछ रहे हैं उनको डिटेल चाहिए. ऑनरेबल मेंबर विल गेट द इंफॉर्मेशन प्लीज. गवर्नमेंट विल सप्लाई द इंफॉर्मेशन. प्लीज अध्यक्ष, इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हम भिजा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन ये क्यों नहीं कहे, वो क्यों नहीं कहे? वी थॉट जो हेल्थ का मामला है सीरियस है, वो इंफॉर्मेशन दिए. क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या स्टेप्स लिए, सरकार क्या दवा दिया, क्या इंतजाम करे, उस पर ज्यादा तवज्जो दी. इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे हुआ, पूरे देश पे हुआ, रियासत पे हुआ, कहाँ नहीं हुआ? हर चीज पे हुआ. पूरे तालीमी इदारा बंद है, मेट्रो रेल बंद है. ये पूरा उसमें लिखने का, इसको पूरा अगर लिखते वो 200 पेज का बन जाता. इसीलिए मैं महाभारत कहा उसको. मेरा कोई बुरा उद्देश्य नहीं है. वो अगर चीजें आपको चाहिए डेफिनेटली आपको दे देंगे, इसमें कोई बात नहीं है. द ऑनरेबल मेंबर वांट्स दैट दोज डिटेल्स विल बी सप्लाइड. बट ऐसा कि गवर्नमेंट फेल्यूर है, ऐसा नहीं कहना चाहिए. नहीं, सुनिए प्लीज सुनिए. आप ही बोल रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं ना भाई. आप जो बोले हम भी बोल रहे हैं. स्पीकर सर, इट्स अवर ड्यूटी. सबसे पहले हिंदुस्तान में सबसे पहले आप सुन लिए ना, हम भी ठीक है. हमें भी अफसोस है इस बात का कि सबसे पहले हिंदुस्तान में हमने हेल्थ वर्कर्स को इंसेंटिव दिया, ग्राम पंचायत वर्कर को इंसेंटिव दिया, म्युनिसिपल वर्कर को इंसेंटिव दिया, सैलरी उनके बढ़ा के दे रहे, उनके हिम्मत अफजाई किया. ये सारे कदम हम उठाए. ऐसा है कि हम कुछ करे भी नहीं, बोलने की मीनिंग इसमें से आ जाएगा. इसलिए मैं कहता हूं, इफ द मेंबर वांट दो डिटेल्स, ऑल द स्टेप्स टेकन इन अदर फ्रंट्स, काफी कुछ हमने किया है. मेंबर खुद कह रहे हैं सर कि आपने पैसे दिया, आपने राशन दिया, आपने माइग्रेंट वर्कर्स को दिया. हम जरूरी इसमें देना करके नहीं समझे. जो क्या दिया दुनिया जानता है, वो तो ऑडिट में बजटेड मनी है, उसका डिटेल हम जब जरूरत पड़े तो दे देंगे. अगर चाहिए मेंबर को तो पूछना चाहिए. लेकिन इस बात पे अफसोस इजहार करना, ये ठीक बात नहीं है. मेंबर जो कहना चाहे कहे, वो उनका इंडिपेंडेंस है, वो कह सकते हैं. उनके अपने अलाटेड वक्त में बाज़ाब्ता कहे, हमको एतराज नहीं है. लेकिन एज इफ यू ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एज इफ इट्स अ गवर्नमेंट फेल्यूर, दैट इज वेयर वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. Honorable Speaker, sir, I have never mentioned about the failures or anything. I just said the achievement which has been made by the government do not find a place over here. I do not understand why Honorable Chief Minister Saab is reacting and getting so angry when I saluted the health workers. I don't know. I don't know why is he getting so angry over me and saying Mahabharat when I'm saluting the doctors, when I'm saluting the nurses, when I'm saluting the lab technicians. Am I wrong? I should not. I should not. Speaker sir, if he is trying to play to the galleries,
Mr. Akbaruddin Owaisi very intelligently trying to pay to the galleries. Who is angry? You salute the doctors. We did not object. Who objected? Who objected? No, who said no? No, don't think that we are, as if we are only saluting. We have saluted much earlier. We have shared the sympathy. We have shared the sorrows. We did all that. ऐसा नहीं है कि हम ये तोड़ मरोड़ के बोलने की बात ठीक नहीं है सर. This is not the way. अकबर सर, conclude. Sir, going further ahead, sir. Conclude करिए साहब. Conclude करूं sir. अच्छा, टाइम. Sir, I was going through the notes, sir. I have seen many things over here. Firstly, I would say the lockdown was unconstitutional. The timing of lockdown was wrong. People's confidence was not taken into. And when I say the lockdown was unconstitutional, it was the lockdown imposed by the government of India. It was unconstitutional. और लॉकडाउन ऐसे अचानक कर दिए कि लोग कुछ इंतजामात भी नहीं कर सके, परेशान रहे. और फिर दूसरी बात, मैं जब ये नोट को देखता हूं तो ये नोट में कहा गया कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरन मीटिंग बुलाई और यहां असेंबली में ही सारे इंतजामात का जायजा लिया. सर, मैं 20 बरस से एमएलए हूं. फ्लड्स आते, तूफान आता, कुछ भी मसला आता तो वक्त के हुक्मरान सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते. ठीक है, हम बेकार लोग हैं, नाकारा लोग हैं, हमारे पास कोई अक्ल नहीं है, लेकिन हम दीवानों को भी कुछ वक्त दे देते तो शायद हमारी जबान से भी कुछ अच्छे मशवरे निकल जाते, लेकिन वो नहीं मिला. सर, एंड गोइंग फर्दर अहेड सर, कोरोना वायरस में जो लोग काम करें, मैं उनको सल्यूट करा. आई थिंक असेंबली का लास्ट सेशन में कोरोना वायरस जब से आया, आज के दिन तक इन कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ अगर मैं समझता हूं कि किसी को सल्यूट करना है, किसी को मुबारकबाद देना है, तो वो इटला राजेंद्र है साहब. मैं बोलूं कि दिन रात मेहनत की इस शख्स ने, परवाह नहीं की, मेहनत की. हां, यह अलग बात है कि बार बार तबलीगियों को बोलते रहे, खैर बोलते रहे, तबलीगों पे इल्जाम लगाते रहे कि उनसे कोरोना आया, अलग बात है, लेकिन आपने मेहनत की, दवाखाने फिरे, इंसान के बस में जितना था किया, जितना हो सकता था किया. और यह ऐसा वायरस था कि किसी को नहीं मालूम. WHO के गाइडलाइंस एक दिन एक आते हैं, दूसरे दिन दूसरे आते हैं, लेकिन उसके बाद भी काम किया, सबने मिलकर कोशिश की. और आज भी कोरोना बाकी है, जिंदा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ. अगर हमारी आबादी 4 करोड़ की है तेलंगाना की, तो 1,45,000 ही इन्फेक्टेड हुए हैं. अगर हम इसको 10 गुना भी कर लेते हैं तो 15-20 लाख होंगे. लेकिन अभी 3 करोड़ लोग को इन्फेक्ट होना बाकी है. तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले कल के लिए भी हमको प्लान करना पड़ेगा. आज इफ वी सी सर इन यूरोप, the second wave has come. Every day in UK, in Germany, in other France, every day 3,000 to 5,000 cases are coming up. So we have to prepare ourselves. What if second wave comes? How are we going to tackle it? And I hope that the government would call for a meeting and take an advice or give us in this forum and a proper time and opportunity to air our views. Whatever we find fit to be taken, we can just mention and we can request the government, sir. Sir, और फिर उसके बाद में मैं ये कहूंगा कि ये नोट में ऑक्सीजन बेड्स के बारे में कहा गया है सर. सर, इन दिस नोट, अकबर साहब, तो टाइम का पाबंदी है ना, जरा प्लीज कोऑपरेट. आप बोल दीजिए कितनी देर में खत्म करना है साहब. अभी खत्म कर दूं? अभी खत्म कर देता हूं. ठीक है, ठीक है. कोरोना पे जो आप मौका दिए, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे स्टेट के लोग देख रहे हैं. आई होप द पीपल ऑफ द स्टेट आर सीइंग कि हाउ सीरियस इट इज एंड व्हाट अ टाइम हैज बीन गिवन ऑन सच अ सीरियस सब्जेक्ट वेयर द वर्ल्ड इज सफरिंग. वक्त भी नहीं है हुकूमत के पास सुनने के लिए,
बोलना भी नहीं देना चाहते हैं और हम बोलते हैं तो महाभारत कहते हैं। ठीक है साहब, हम नहीं बोलेंगे। आपको मुबारक, ये ऐवान, ये आपको मुबारक। आप जो चाहे जैसा चाहे कर लीजिए, इंशाअल्लाह अवाम फैसला करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। बोलना तो बहुत चाहता था, मरकजी हुकूमत में भी गिरना चाहता था, उनके क्या नाकामियां हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है। तो ठीक है, शुक्रिया आपका। गादर किशोर गारू।